entrepreneurship and that Atmanirbhar Bharat. World Bank people is to say that we will give you the grant and loan component attached to it if it is a manufacturing activity. And in one of the incidents I remember, I said that yes, Basmati rice is one of the very premier brand which has a very, very high international market acceptability. So please permit us that we are rice we are manufacturing. How can it be? It's the agricultural produce. You must husking it and then you are packing it and supplying it. You will not believe we took months together to argue and finally to convince them. And my bosses, the seniors, used to push us, the juniors, in the forefront that you argue and try to get it done. Also, polishing, it is a part of the manufacturing activity. And therefore, it's a, you are eligible for this. And therefore, the capital goods like Sortex machines are required, which you have to import from abroad in Germany. Because those days India was passing through very bad phase, foreign exchange problems were there, our currency was devalued. I am just giving you examples. Atmanirbhar Bharat is, India has huge resources, raw materials. If you say the coal, you take the iron ore, you take the cotton. These natural products, the raw materials, we are just extracting, plucking the cottons and exporting. Where is the value addition? There is no value additions. Today, that's why Atmanirbhar Bharat Prime Minister has announced that all coal blocks auctioning, privatization, so that efficiency and the quality products at a globally competitive price, which we can produce. I'm telling you that I want to share with you, since I was part of that team and I was involved, I have visited each and every state of India and each and every Western country of the world. And that was precisely, that's why I want to make it drive home the point that even we were given the guidelines that when you go to the France, you see that what is most important produce of France. Wine is the produce of France because grapes are grown in the French Riviera. To try to target those items that where country is comfortable and how you nurture those industries. And really, they are supplying all over the world. If the Scotch whiskey of Scotland is popular or famous, they are supplying all over the world. If Italian granites and marbles are famous, they are supplying all over the world. Because inherent strength of those countries that they have huge abundant supply of cheap raw materials or produce. But on the contrary, I will give you an example with the Switzerland. Switzerland chocolates are famous all over the world. But whether Switzerland has cocoa? No, nil. They import cocoa and they are making chocolates and they are selling all over the world. So whether they are not Atmanirbhar, they are Atmanirbhar. As long as your product is internationally competitive or even locally competitive, you have a very strong domestic market presence, you are Atmanirbhar. And in India also, the similar drive is being taken, whether it is in a very advanced technological matters or it is a primitive technologies. It is a, I am sure if I come back, living outside the Western countries, if I come back to the even Asian countries, how Japan has done it. Japan has never, after Second World War, when the atom bombs were dropped, Nagasaki and Hiroshima, they took past a resolution, we will never buy any American product, not even a pin, not even a car. And those days they were importing the German cars, but not American cars. And today, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, one after another world-class car companies in Japan, such a small country, only 4 islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. See the transformation, see the willpower of the people. In India also, Atmanirbhar, that process has started long back, but that commitment, that national feeling, that national pride, it is not only the self-reliance, it is the self-sufficiency is very, very important.
very, very important for India. And if we believe in our products, our processes, our technologies, I think we can grow immensely. But if we harp on the only imported foreign technologies, we'll be always going the backside. Yes, when we're making a nuclear power plant, when we are having a fast breeder nuclear reactor, whether you want a plutonium or the uranium refinement, enrichment, but abundant monazite sand in Kerala beaches, which contains very high concentration and degree of thorium. So why not to have a thorium-based nuclear reactor? That should be the focused approach. That how best we can utilize our resources and we can cater to the people of India first, because your internal economy is the first priority, first important factor, and then you try to make it globally competitive. Because globally competitive market, if you want to entrench, it's not an easy job. You have to have a qualitative product, you have a cost-effective product. Cost and quality both go side by side. That's why it's very, very important. If early in the morning, if I get up from my bed and if I use the Procter & Gamble toothpaste or Unilever's toothpaste, so what I'm doing, the early morning when I'm getting up from the bed, the first fraction of the profit, percentage of paisa, I am remitting to abroad. And that is why those companies become rich and richer. That is why those countries have become rich and richer. But definitely I have stopped long back after the Ramdev's product has come in the market. And I prefer Danta Gandhi products is much better than these MNC products as much as possible, whether soap or shampoo or this, I try to use them. And I'm quite happy by using this. If each of us contribute in this kind of mindset that we will use local products, but that doesn't mean the monopolistic product. Because if it is a monopolistic product or process, or then there will be no improvement, there will not be developments. That's why that blending of your in-house technology and the overseas technology is very, very important. And I am sure with such a distinguished speakers, I will not take much time, but I had ample number of examples to give you that the countries who do not have the resources, they have utilized it and do it. We have a Kudamukh iron ore project in Karnataka, if any of you have any idea. We are simply exporting iron ores to Japan. Japan doesn't have a single iron ore in that country, but the largest steel plants of yesteryears, even 2 decades back, I remember Daido Electrosteel, even the Nippon Steels are the world famous steel companies, and they were supplying steels to all over the world. So simply utilizing the resources of the country at a throwaway price and exporting without converting that into intermediaries with the value additions, it's a criminal wastage of our country's very, very expensive precious resources. That's a colonial culture. That is what exactly the British people have done it. But in India, our beloved Prime Minister is, that's why, giving so much of trust that be Indian and buy Indian. The same way that when American president announces that be American and buy American. So why can't we say that? You tell me. Even presently also it is happening. I have seen that one drugs have come, antiviral drug, Remdesivir, which is an American product. And maybe the American pressure we have started manufacturing, the Cipla and Hereto of Hyderabad are manufacturing, which is not actually the therapeutic use for the COVID. It is actually the antiviral drug which was used for SARS and MERS. And that drug has not even helped so much in USA. That's why 1.25 lakhs death in USA. That drug has not even helped in China. But we are doing it in these things. But at the same time, we are criticizing the Ramdev products when he has come for Corona kit. Okay, that also may be not curable for the curing the disease. But even if it boosts the immunity, why not? Let us try. Why not? Why shouldn't we try? So the focus is a new India, the India with the new generation. Youngsters must focus on our own products, own technology, and how fast
we can cater to the local population, because huge market we have. If this market, this population purchases power goes up, I am telling you, thousands of companies will become richer and richer, and you will find that more and more companies are coming in the list of Forbes. There are countries without resources. I have given you some example, the iron ore in Japan. South Africa is another country which is almost comparable in the BRICS member also, along with India. Doesn't produce a single drop of petroleum. No petrol products at all. At least we have some petrol in Northeast India. But they have diamonds. So they are selling diamonds, having money, and they are buying petrol from UK on the high seas, because the international ban is there. It was there when the effort thing was going on 20 years back. They were getting petrol only through the high sales. But their progress growth never stopped, never halted. You have to find the way out, that how we can maximize our efforts with the goal that yes, we will become Atmanirbhar Bharat. Thank you very much for joining us. And I'm sure that Chameli Devi, a group of institutions, will come up with more and more such innovative programs, current topics, and with distinguished speakers that each of us will be immensely benefited. Thank you once again. Thank you very much, sir, for your inspiring words, and be Indian, buy Indian. Now I introduce our first speaker of this 2 days workshop. We have with us Ms. Tanvi Kandapal. Ms. Tanvi is co-founder of Philknowledge, an education technical entrepreneur, host of LinkedIn Local Indian chapter. Her top skills are team management, business development, and youth entrepreneurship. Ms. Tanvi was awarded by India Leadership Award in the year 2018. Today, she will speak upon the topic identifying the road less traveled. So without taking much time, now I request Ms. Tanvi to start the session and address the gathering. Good morning, everyone. So am I audible to all of you? Yes, ma'am. Perfectly audible. Perfect. So first of all, thank you so much to the team CDGI for inviting me for this workshop. It's an honor to be here. And thank you, Director Sir, for sharing such wonderful insights. And we are obliged by your few minutes talk. So about me, this is Tanvi Kandapal. My current designation reads as co-founder of Philknowledge. This is my second startup. I am into this, I total accounting experience of more than 9 years in this industry. So first 2 years I was in job, I was in digital marketing, and then I switched, I jumped into an ocean of entrepreneurship. So it's been 7 years. This is Philknowledge is my second startup. Previous startup is still running, and we started the team of 2 and scaled it up to 200. So about Philknowledge, I would want to talk about. This is mainly focused upon financial education in India, and we are working towards some mission of empower and educate. So we want to educate 1 million people with financial knowledge by the end of 2025. So this is what about me and my startup. So today I'm here to discuss about entrepreneurship. See, and how this road of Atmanirbhar looks like, because Modi ji, as you already know, have given this slogan of Atmanirbhar. Back then when इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते हैं हम, तो उस टाइम एक स्लोगन था स्वदेशी अपनाओ वाला, और आज हमारे पास एक आत्मनिर्भर वाला. And the youth of India will be definitely playing a major role in contributing, making India Atmanirbhar. So how this road to Atmanirbhar looks like, and how entrepreneurship can help making India Atmanirbhar, we'll be discussing about this. Also, we will be identifying, we will be looking at how to identify less travel routes. So I'm being told that there are so many students who are, who are aspiring entrepreneurs. So जितने भी लोग, जितने भी students हैं यहाँ पे जो entrepreneurs बनना चाहते हैं या business start करना चाहते हैं या self dependent होना चाहते हैं, so I want to congratulate all of you first, because you're already on your way to become Atmanirbhar.
So this entrepreneurship doesn't look, it doesn't look very, what we say, struggling or anything. बहुत cool लगता है ना entrepreneurship जब हम लिखते हैं अपने bio में and जब हम बोलते हैं. But it's not as easy as it looks like. So बहुत सारी challenges होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें फोर्सी करनी पड़ती हैं, बहुत अप्रोचेस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती हैं. तो हम इस 1 घंटे के सेशन में यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, उनको एक्सेप्ट करके रिमूव कर सकते हो, एंड देन हाउ यू कैन ग्रो ऑन अ पाथ ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत. सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. Team is there? Yes, ma'am. Shall I share it now? Yeah. Once. Okay, is the screen visible to everyone? Yes, it is visible. Okay. So this topic is entrepreneurship, road to Atmanirbhar. I'll be speaking upon identifying roads less traveled. So starting from the very first slide, it says, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. This topic, which have been given to me, identifying roads less traveled, is in somewhere inspired from one of the famous poem by Robert Frost, which is Road Less Taken. These are the 2 lines, and these 2 lines clearly identify what we will be, gonna discuss about this session. So now, identifying roads less traveled. What does this mean? Roads less traveled means finding opportunities which are yet to be tapped, or identifying unconventional business ideas which are less traditional. अभी तक हम देखते हैं, या 10 साल पहले या 20 साल पहले जब हम बात करते हैं, तो जब हमारे घर में कोई बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, एंड हमारे पेरेंट्स आते हैं और हमसे बोलते हैं कि ठीक है, आप पहली बार तो वो मना ही कर देते हैं, nobody is there to support you, या आप जॉब के अलावा कुछ भी करने चाहते हो, so they are like, ये करके क्या होगा, आपको पैसे कमाने हैं, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी. बट मैं ये सबसे कहना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, सो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा. सो मैन इन बिजनेस की बात तो बहुत दूर की बात है. इफ आई टॉक अबाउट विमेन इन बिजनेस, जब मैंने मेरे पापा से कहा था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना है, मुझे बिजनेस बनना है, सो आई वाज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. Nobody in my family was into business or any kind of businesses before, so this field was very new to me. But then my father supported me, and just because of him, I'm here, I'm running a startup, or I have run 2 startups from last 7 years. And as the team mentioned that we have been awarded with the India Leadership Award also for being the most trusted investment advisor in India. So this encouragement is required from the very beginning, from our family itself, so that we continue on that path, क्योंकि family का support सबसे ज़्यादा important होता है. So coming back to the point, identifying road less traveled, यहाँ पे आपको अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडियाज जो कि बहुत कम ट्रेडिशनल है, उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो ये 4 पिक्चर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे. बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ, इनका इंट्रोडक्शन भी दिया है हमने. The first one is Elon Musk. He is the CEO of SpaceX and Tesla. Second is Ajay Nagar, popularly known as Carrie Minati. जिन लोगों ने अभी जो Instagram and YouTube follow करते हैं, TikTok also. So एक controversy आई थी TikTok versus YouTube. यहाँ पे बहुत famous हुए थे. And he's the #1 YouTuber. Also, he's having 22.3 million subscribers. Mr. Ritesh Agrawal, he is founder of Oyo Dreams. Obviously needs no introduction. Mr. Baiju Ravindran, बायजूस ऐप शाहरुख खान आप देख सकते हैं, जिनका ऐड करते हुए आपको दिख सकते हैं. प्लस हमारी इंडियन टीम जो जर्सी आजकल पहनती है, पहले हम ओप्पो एंड वीवो, तो हमने ऑलरेडी वहां से चाइनीज प्रोडक्ट बाइकआउट कर दिए हैं, तो वी आर ऑलरेडी ऑन टू वे दिस मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. अब एक बहुत कॉमन बात है इन सब में, इन चारों लोगों में, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इट्स नॉट पॉसिबल टू मर्ज ऑल ऑफ देम इनटू दैट वन स्क्रीन. बट इन सब में एक कॉमन चीज थी कि उन्होंने वो चीजें ट्राई की जो कि बहुत अनकॉमन थी, या फिर कुछ एक इनोवेशन था, कुछ एक इन्वेंशन था. एंड दैट इज व्हाई
these people are known to be the living legends in the startup world of, if I talk about, or in any kind of popularity. YouTuber, आप अगर बोलें कि मुझे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई अगर बोलता था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर बनने के हमें खुद भी नहीं पता था, या हमारे पेरेंट्स को हम ये यकीन नहीं दिला पाते थे कि यूट्यूबर बन के मैं क्या करूंगा, क्या होगा। एंड अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी बड़ी मूवीज आज इंटरनेट पे हमारे पास रिलीज हो रही हैं, एंड फ्यूचर इज इंटरनेट, फ्यूचर इज डिजिटल। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये 4 फेज अगर आपने देखे, इनको आप याद करके रखिएगा और उनके बारे में सर्च करिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सेकेंड, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडियाज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडियाज, मतलब जो लेस ट्रेडिशनल है। फर्स्ट इज डूइंग वर्क दैट मैटर्स। सेकेंड, चैलेंजिंग द वे इट हैज ऑलवेज बीन डन, जैसे हमेशा होता आया है वैसे ना करके उन तरीकों को चैलेंज करना जिससे वो अलग तरीके से किए जा सके। थर्ड इज सीइंग व्हाट अदर्स कांट सी एंड हैविंग अ विजन टू फोरसी द ग्रोथ अराउंड इट। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है विजनरी अप्रोच। इफ यू आर हैविंग दैट विजन that you can foresee what is future। अभी ये नहीं देखना है कि कोविड-19 था तो अभी मास्क आया है तो हाँ मैं भी मास्क का बिजनेस कर लेता हूँ, या फिर मैं भी सैनिटाइजर बना लेती हूँ। आपको ये देखना है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एंड हाउ यू कैन टेक योर स्टार्टअप एंड ग्रो इट आफ्टर 5 years और 10 years। वो आपको फोरसी करना है। अगर एक बार आपने वो सीख लिया तो आप एक सक्सेसफुल पाथ की ओर बढ़ जाएंगे। सो दिस clearly be summed up in 2 lines. It can mainly attributed to an individual's constant urge to do something different, something not considered mainstream. So these drive insights us give rise to some of the most amazing and original ideas being conceptualized and executed. जब आप कुछ नया करने की बात करते हो, कुछ अलग करने की बात सोचते हो, तो आप मेन स्ट्रीम चीजों से हट के सोचते हो, and that is the rise of something very good which haven't been heard or which haven't been talked about. So the question is how to find unconventional business idea। अब हमने बात तो कर ली कि आपको अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडिया करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, पर अब उन तरीकों को कैसे देखा जाए कि वो कौन से तरीके हैं, कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो कि अनकन्वेंशनल होते हैं, जो कि कम ट्रेडिशनल होते हैं। और हम शुरू से ही देखें तो ट्रेडिशनल वी हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग कन्वेंशनल बिजनेसेस ओनली, कि पापा का शॉप है तो आप वहां पे फैमिली बिजनेस को आप अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आपने देखा है कि बहुत जो रेगुलर पॉपुलर बिजनेसेस होते हैं हम उनको ही बिजनेस मान के चलते हैं। बट अभी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बदल चुकी है। If I talk about Gen Z, and if I talk about 21st century, so the entrepreneurship has totally taken a different curve. So traditional तरीके obviously they will be giving you जो settled business है वो already read है, thought है और already proven है, उनके बारे में आपको कुछ भी study करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी risk जैसा कुछ नहीं है। अगर आपका family business है आप वो join करिए, आप खुश रहिए। but अगर आपको कुछ नया try करना है, आपको कुछ unconventional try करना है, तो आपको इन सब चीजों से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। तो आप कैसे उन चीजों को क्वेश्चन आता है कि हाउ आई क्रिएट माय बिजनेस आइडिया, मैं अपना बिजनेस आइडिया कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत बेसिक और सिंपल रूल मैं यहाँ पे 4 रूल्स दे रही हूँ आपको। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बुक है जहाँ पे आपको आइडियाज मिलेंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, बट ये जो 4 बेसिक रूल अगर आपने अपने माइंड में रखे तो आप छोटे से छोटा, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करके उसे स्केल कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमेशा हमको कहा जाता है कि आप जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करो या लव व्हाट यू डू। जब तक आप अपना बिगेस्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढेंगे, आपको किस चीज को करने में अच्छा लगता है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा, आप किसी भी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप किस चीज से खुश होते हैं, आपका किस, या हो सकता है आप अपने बिजनेस से 1 साल बाद बोर हो जाइए, आप वहाँ पे चैलेंजेस आए तो आपको लगे कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई एम नॉट मेड फॉर इट, एंड आप उस चीजों को चेंज करें। बट entrepreneurship is not for 1 day, 1 week or 1 year. It is constant practice. It is an art which you practice for year on year, and then you learn so many things into that way. So the first thing which you need to do is identify your biggest source of satisfaction, or you can do it by analyzing your strength. Suppose if you are good at communication, if you are good at presentation, you can choose a role of this इंटरनेट इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन लर्निंग है, ट्यूटोरियल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे वो वाले स्पेसेस हैं, रेडियो का स्पेस है। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप वीडियो जॉकी वाले स्पेस में जा सकते हो। दिस यू नीड टू फिगर आउट, और ये हर किसी का अलग अलग होता है स्ट्रेंथ एंड दिस
जॉय जो अंदर से आता है, तो ये आपको अपने लेवल पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. सेकेंड इज आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम. कोई भी आइडिया प्रॉब्लम से जनरेट होता है. आपने प्रॉब्लम देखा, आपने उसका सोल्यूशन देखा, दिस कैन बिकम योर बिजनेस आइडिया. प्रॉब्लम था कोविड-19, वहां पे जर्म्स थे, तो सैनिटाइजर वाज द सोल्यूशन और द मास्क वाज द सोल्यूशन. आपको अपने आसपास आप लोकल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स किसी भी लेवल पे देख सकते हैं. अगर आप छोटा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल प्रॉब्लम्स को देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो लोकली आपके बिजनेस को हेल्प करे, आसपास आपके बिजनेस को हेल्प करे. कुछ आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि किसी के काम को ईजी कर दे, या फिर ग्लोबल लेवल पे आप कुछ बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, या फिर गार्बेज से रिलेटेड है, या फिर आप बात करें बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज है, उनसे रिलेटेड कुछ आप उस बारे में कर सकते हैं. सो दैट विल बी दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू कैन सॉल्व. एंड अगर आप वो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दिस ऑब्वियसली विल बी बिकमिंग योर स्टार्टअप आइडिया. सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट. Third is think about the world's biggest challenge 15 years from now. This is the second time we are discussing about visionary approach. आज से 15 साल बाद क्या चैलेंज होंगे, या आज से 5 साल बाद क्या चैलेंज होंगे, 10 साल बाद क्या चैलेंज होंगे. विजनरी अप्रोच रखना बहुत जरूरी है. Nobody would have ever thought this COVID-19 thing will come, and अभी पूरी चीजें बदल गई हैं. आप आज से 3 महीने पहले देखो तो बहुत सारी चीजें अलग थी. अभी ड्यू टू COVID-19 वी आर सिटिंग एट होम एंड डूइंग दिस सेमिनार. अगर नहीं होता तो हो सकता है हम चमेली देवी के एक ऑडिटोरियम में होते हैं, एंड वो जो भी 200 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं वो मेरे सामने होते हैं, और शायद मैं आपके सामने होती ऑन स्टेज. सो द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड. अब अगर यहाँ से आपको इस क्राइसिस में अगर आपको सोचना है कि इस क्राइसिस से आप कैसे अपॉर्चुनिटी को बना सकते हो, तो यू हैव टू हैव अ विजनरी अप्रोच कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रो करेगी, वो ऐसा कौन सा चैलेंज है, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो, वो क्या चीज है जो आप दुनिया को दे रहे हो. सो दिस थर्ड पॉइंट विल बी योर लाइफ चेंजिंग एंड करियर चेंजिंग थिंग. फोर्थ इज अनप्लग एंड डू समथिंग डिफरेंट. अनप्लग मतलब होता है कि आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. सोशल मीडिया पे मैंने एक यूट्यूबर को देखा, सोशल मीडिया पे मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा, और मैंने सोचा हाँ मैं भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, और क्योंकि मैं अच्छा बोल लेता हूँ. या फिर मैंने एक देखा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, पर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं भी एक सिंगर बन जाता हूँ, म्यूजिशियन बन जाता हूँ, या फिर मैं भी कॉमेडी कर लेता हूँ, मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेता हूँ. एक्चुअली आपको लगता है ना आप कर सकते हो. सो अनप्लग योर सेल्फ. ऊपर के 3 पॉइंट रिवाइज करो. क्या आपका ये सेटिस्फेक्शन का सोर्स है? प्रॉब्लम वाला सेकंड पॉइंट इसमें नहीं होता है. थर्ड प्रॉब्लम, क्या ये अभी पॉपुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे 5 साल और 10 सालों में पॉपुलर होने वाला है. अगर आपको इन तीनों चीजें के आंसर मिल जाते हैं, सो दैट थिंग इज फॉर यू. देन यू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द थिंग. जैसे हम बोलते हैं कि आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हो जब, तो माय कजिन हैज प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस एग्जाम. तो उन्होंने 1 साल तक कोई भी मैरिज फंक्शंस, कोई भी चीजें अटेंड नहीं की थी. ही वाज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अदर आउटसाइड थिंग्स. He was completely dedicated to his exam. तो आप इसे ऐसे ही समझिए कि अगर आप किसी स्टार्टअप के आइडिया पे काम कर रहे हो तो आपको अनप्लग करना पड़ेगा. एंड कुछ डिफरेंट करने के लिए आपको ये वाली अप्रोच जरूर अपनानी पड़ेगी, जहाँ पे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, जहाँ पे आप इसे सोचोगे, एंड देन it will be that the product which you will be having will be for your business idea, and that can be unconventional. So moving to the next slide, challenges finding new business ideas. अब बिजनेस आइडियाज की बात कर ली हमने, इसमें चैलेंजेस भी होते हैं. चैलेंजेस की बातों में सबसे पहला आता है पोटेंशियल आइडियाज आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस. मुझे लगता है कि यार ये आइडिया तो मैंने भी सोचा था, पर अब तो ये ऑलरेडी बिजनेस बन चुका है. जैसे मैंने भी फूड डिलीवरी का सोचा है, पर जोमेटो, उबर ईट्स, स्विगी ये तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो मैं इन चीजों को कैसे करूंगी. ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे माइंड में आता है. हमें लगता है कि ऑलरेडी सारी चीजें आसपास हो रही है और हम क्या ही नया कर लेंगे. So this is the first thing. इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि how to overcome these challenges. Second is lack of visionary approach. This is the third time we are discussing lack of visionary approach, because this is the most important point. आपको एक vision develop करना होगा, and then only you can have a business idea. Third is dealing with the competition. आपको डर लगता है कि आप कंपटीशन से कैसे डील करोगे. जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो और अदर एप्लीकेशंस की बिजनेसेस ऑलरेडी है. कॉल सेंटर अगर आप करना चाहते हो उसका बिजनेस भी ऑलरेडी है. क्या आप ऐसी नई चीज करोगे जिससे आपको, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े जायंट्स हैं इंडस्ट्रीज में, बायजूस है. अगर आपको एक लर्निंग ऐप लेके आ रहे हो तो आप कैसे उस कंपटीशन से डील करोगे. सो दीज आर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हिच ऑटोमेटिकली कम्स इन आवर माइंड. देन फियर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस. ये बहुत बड़ा फियर होता है. ये पर्सनली भी होता है और सोशली भी होता है. पर्सनली ये होता है कि हम
ऑब्वियसली 4 लोग क्या कहेंगे सोशली, और हमारी कई बार फैमिली से भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस होता है, इट ग्रोज फ्रॉम आवर माइंड टू सोशल, एंड हम वो सारी चीजों के बारे में चिंता करने लगते हैं और इस वजह से हम कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, just because this fear of non acceptance. Fifth is uncertainty about future. ये हमेशा रहेगा, जैसे अभी आपको लग रहा है कि कोविड-19 आया है, चीजें चेंज हो गई हैं, फ्यूचर इज अनसर्टेन। जैसे आप शेयर मार्केट में भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी अपने मार्केट, आपको पता होगा अगर थोड़ा सा भी अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि निफ्टी 12,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, एंड देन इट केम डाउन बिलो 8,000। तो मार्केट ने भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी, इकोनॉमी डाउन है हमारी, अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम चाइना की क्या करना है। सो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर विल ऑलवेज बी देयर, ये पहले भी थी, ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगी। तो ये 5 जो चैलेंजेस हैं ये आते हैं, ये हो सकते हैं कि आपके माइंड में आए, और अगर आपके माइंड में ना भी आए तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चैलेंजेस ये वाले रहेंगे। इनसे कैसे डील करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उसके पहले चैलेंजेस से कैसे डील करना है उसके पहले मैं आपको कुछ 2-3 आइडियाज के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको आइडिया होगा, जिसमें आप मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं एक स्टार्टअप आइडिया का नाम लूंगी, उसमें आप पिक्चराइजेशन देखेंगे, उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा एंड आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, there are some unique blooming business startup ideas. First one is भारत जल। आप देख पा रहे हैं, एक इमेज है आपके सामने आपकी स्क्रीन में। भारत जल एक सप्लाइंग इज अ स्टार्टअप जो कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है टू डेली ट्रैवलर्स थ्रू इलेक्ट्रिक मोबाइल व्हीकल्स, दैट इज कॉल्ड EMVs. So Bharat Jal is supplying clean and safe drinking water to the daily travelers through electric mobile vehicles, making it easily accessible and affordable, while at the same time reducing the use of single-use plastic. Read that last line again. At the same time, it is reducing the use of single-use plastic. So 3 चीजें इसमें मैंने जो नोट की हैं, फर्स्ट कि ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि जो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है आसपास, हम देखते हैं हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो आइदर वी कैरी आवर ओन वाटर बॉटल या फिर हम प्लास्टिक बॉटल्स बाहर से खरीदते हैं। बहुत 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 बेसिक चीज है ये। सेकेंड, जो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है ये ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इलेक्ट्रिक मोबाइल व्हीकल्स व्हिच इज सेविंग आवर एनर्जी कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल सेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक से सर्व हो रहा है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो एक साथ ही बहुत सारे पर्पस सॉल्व कर रहा है। पहला तो बेसिक जो प्रॉब्लम थी जो स्टार्टअप्स में जो हमने डिस्कस किया कि आप अपने आसपास प्रॉब्लम ढूंढिए, उनका सोल्यूशन ढूंढिए, तो एक जो प्रॉब्लम थी बहुत बेसिक, उन्होंने सॉल्व की है। सेकेंड, इन्होंने जो एनर्जी कंजप्शन है उसे बचाया है, मतलब आगे आप देखेंगे कि अभी भी जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जो प्राइसेस इनकी कंपनी पे ये क्राइसिस बहुत कम इफेक्ट डालेगा कि पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा भी हो रहे हैं, डीजल प्राइसेस ज्यादा भी हो रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप अगर ये है या आपका बिजनेस आइडिया ये है तो आपको ज्यादा इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, आप देखिए आप कितना एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, CSR एक होता है जिससे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, एट द सेम टाइम यू आर डूइंग दैट ऑल्सो। तो एक स्टार्टअप आइडिया से जो कि बहुत बेसिक है, आप ये तीनों चीजें, ये 3 पैरामीटर्स आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, और ये यहाँ पे आप, ये बहुत ज्यादा पुरानी इमेज भी नहीं है। अगर आप ड्राइवर को देखेंगे, सो ही इज वेयरिंग दैट ग्लास फेस शील्ड एंड ही इज वेयरिंग ग्लोव्स। तो ये स्टोरी फीचर हुई थी अभी न्यूज में, एंड आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। सो दिस वाज वन थिंग आप नोट करिएगा अपने पास कि आपने इस स्टार्टअप आइडिया से मैंने जो बताया उसके अलावा आपने क्या सीखा है, देन वी विल बी डिस्कसिंग इट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर दिस सेशन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बबल टी। बबल टी एक योर स्टोरी एक मीडिया पेज उन्होंने फीचर किया था। बबल टी एक बेवरेज है प्राइमरीली बेस्ड ऑन इन्फ्यूजन ऑफ टी विद टेपियोका पर्ल्स। A modern approach has expanded this definition to the infusion of any flavor with tapioca pearls or different types of jellies. In a sense, bubble tea could be any drink, but what make it unique is the bubbles or tapioca pearls that one will find at the very bottom of the tray. अब चाय का आइडिया है ये, सिंपल से अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, चाय के बहुत सारे आपको स्टार्टअप्स इंदौर में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे चाय सुट्टा बार आपका ऑप्शन है। आप लोग जाते भी होंगे, बहुत सारे कॉलेज गोअर्स हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं उनके, इंदौर में भी हैं, MP में भी हैं, एंड और भी 2-3 आउटलेट्स हैं जो सिर्फ चाय सेल करते हैं। चाय इज वेरी 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 बेसिक थिंग, जैसे पानी में हमने बात किया था, उसके बाद हम चाय पे डिस्कस करते हैं। बहुत बेसिक अप्रोच है,
बहुत कन्वेंशनल भी है, प्लस इनका आइडिया अनकन्वेंशनल क्यों है आपको पता है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये ताइवान का कंसेप्ट है। 1980 में ताइवान ने ये डिस्कवर किया था, उन्होंने ये इन्वेंट किया था। ये टेपियोका पर्ल्स जो होते हैं ये एक तरह के बबल फॉर्म में होते हैं, और ये इंडिया में थोड़ा सा नया कंसेप्ट था। जैसे कुछ दिन पहले तंदूरी चाय का एक कंसेप्ट आया था जो कि वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, फिर बहुत सारे आउटलेट्स में वो मिलने भी लगी थी, बहुत सारे लोग उस चाय को बनाते हुए देखते हुए बहुत प्रेफर करते थे। तो उसी तरह की एक नया कंसेप्ट है, ये कन्वेंशनल के साथ ये अनकन्वेंशनल भी है फॉर इंडिया में। सो फॉर एनी बिजनेस, अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपको अनकन्वेंशनल बिजनेस चूज करना है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पुराने बिजनेस को, ट्रेडिशनल मेथड को नहीं यूज कर सकते हो अनकन्वेंशनली। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कि एक विजनरी अप्रोच दे सके, अपने बिजनेस को सर्वाइवल मोड दे सके। जैसे अगर आपके आज कपड़ों की दुकान है तो आप उसे डिजिटलाइज कर सकते हो, क्योंकि दिस मोदी हैज गिवन दैट स्लोगन ऑफ डिजिटल इंडिया आल्सो, कि मैं इसे ऑनलाइन बेचूं। फ्लिपकार्ट कंपनीज क्या कर रही है, अमेजोन पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी होती है। तो आप अगर एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हो तो जरूरी नहीं है कि आपको एक यूनिक आइडिया ही ढूंढना है, आप अपनी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बिजनेस को भी अपग्रेड करके उसे डिजिटलाइज करके और उसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हो, and that can also be a great business idea, and then you can run it like a 21st century entrepreneur, right? So moving to the third slide, this is one of my favorites. ये न्यूज है आईआईटी दिल्ली की, नैनो क्लीन नाम है इनके स्टार्टअप का। नैनो क्लीन बाय आईआईटी दिल्ली एल्यूमिनाई हैज लॉन्च्ड अ रेस्पिरेटरी फिल्टर प्राइस लेस देन ₹10। आपने अगर दिल्ली ट्रेवल किया हो, जैसे हम में से बहुत से लोग जनरली जाते हैं, तो आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में आफ्टर दिवाली एक बहुत मेजर इश्यूज आता है वहाँ पे पोल्यूशन का, जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, एयर क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। एंड हर साल ये न्यूज में आता है कि वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। एंड हर तरह की न्यूज हम सुनते हैं, हर साल ये न्यूज आती है, हम सुनते हैं, वो चली जाती है, एंड एवरी टाइम इट हैपेंस रेगुलरली। सो बैक इन 2017, Pratik Sharma, इनका नाम है, he saw his mother's asthma deteriorate due to decreasing air pollution. So this affected her everyday lifestyle, and she was reluctant to use any face mask or nose buds filter because of the discomfort they cause. So this got Pratik to think about developing a filter that doesn't go inside your nose like nose buds filters and doesn't cover your face like a face mask. अब आप देखिए, उनकी माँ को अस्थमा की तकलीफ थी, इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन की वजह से वो मास्क नहीं लगा पा रही थी, and this has made this particular person think about his new startup idea, and उनके startup idea को he has been awarded the startups national award, जो कि मैंने फोटो भी इंक्लूड किया, आप देख सकते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी इज प्रेजेंटिंग दिस अवार्ड टू हिम। तो नेजो फिल्टर ऐसा दिखता है, जो लेटेस्ट इन्वेंशन, फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे ये ₹10 का चिप है, सिर्फ ₹10 का ये चिप है। सेकेंड पिक्चर्स में आप देखेंगे कैसे नाक में फिट हो जाता है। This seems to be the very common invention, but this has drastically, tremendously what we can say, बहुत अच्छा इन्वेंशन था इनका, और इसके लिए he has been awarded. जनरली हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप आसपास अपने प्रॉब्लम्स को देखिए, प्रॉब्लम्स से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एंड दिस पर्सन हैज एक्चुअली converted this problem into this company, this filter or nano clean company, they own all the rights of developing up, ये लोग, इनके पास बहुत सारे rights हैं जहाँ पे ये बहुत सारे नैनो क्लीन्स फिल्टर्स या नेजो फिल्टर्स या इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे मार्केट में, और ये बहुत जल्द मार्केट, और ये ऑलरेडी है मार्केट में, अगर आपने देखा होगा आप इसके बारे में पढ़िएगा। सो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारे घर में ही हैं वो प्रॉब्लम्स जिनका हम सॉल्यूशन लाके हम बहुत बड़े लेवल पे उस चीज को कर सकते हैं, और बहुत छोटे और बहुत सिंपल इनोवेशन के साथ। एंड आप देखोगे कि ये बहुत बड़ी मशीन ऐसे नहीं है कि जहां से हमने चाइना से इंपोर्ट किया है या कहीं और से इंपोर्ट किया है, या ये हमको $1 बिलियन में मिल रही है। इट इज कॉस्टिंग अस नॉट मोर देन ₹10, ₹10। मतलब आज सीसीडी में चाय भी आप जाओ तो वो ₹250 की मिलती है। सो एक नैनो क्लीन एक फिल्टर मिल रहा है आपको ₹10 में, इससे बड़ा इन्वेंशन आप क्या देख सकते हैं। सो these 3 things which we discussed, बहुत बेसिक चीजें ली मैंने, पानी, चाय, और ये पोल्यूशन वाला जो एग्जांपल था ये आपके सामने था। उसी तरह मैं ऐसे बहुत सारी इन्वेंशंस, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि है मार्केट में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम एंड टू मर्ज ऑल ऑफ देम इनटू दिस वन पर्टिकुलर स्लाइड, बट आई विल ट्राई टू शेयर द स्टोरी ऑफ माय स्टार्टअप.
So that's name is Phenolish. How this Phenolish came into existence? So I previously in my previous startup I was working as market advisor, and while dealing with clients, so we could sense that there's a huge gap of financial literacy among Indian population. So people take advice blindly without having idea of whether they actually need it or not. So that's where Phenolish came into existence. अभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन की हम बात करें ना इंडिया में, तो एक छोटे से 10 साल के बच्चे से भी आप पूछोगे तो अपनी पसंद की टी शर्ट लेगा, पर अगर आप इफ यू आर 30 और 40 और आपसे पूछा जाए कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस या म्यूचुअल फंड आप कौन सा लेंगे, या फिर फाइनेंशियल आपके जो भी डिसीजंस रहेंगे वो कौन लेगा, तो उसके लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा एजुकेशन गैप है, जिसे हम फिनोलिश के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. फिनोलिश इट इज बेसिकली focused towards providing financial education in India. It will work for all of all the sectors. Students can also get benefit of it. Housewives can also get benefit of it. अब housewives कैसे benefit होंगी? मुझे financial education budgeting, क्योंकि अभी तक हम FD करते आ रहे हैं. मुझे अगर savings की बात करनी है तो मेरे, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स FD करते थे, उनके पेरेंट्स ने FD किया है, तो फिक्स डिपॉजिट इज द इजीएस्ट एंड सेफेस्ट वे. और उसमें जो रिटर्न्स, मतलब अभी हम देखें तो 6% का ही रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि बहुत सेफ होता है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम करते आ रहे हैं, तो हम वही करेंगे. उसके अलावा अगर हम आज मैं आपसे बात करूं म्यूचुअल फंड की, या मैं आपसे बात करूं इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की, तो हम डर जाते हैं, सोचने में आ जाते हैं, या फिर हम रिस्क लेना नहीं चाहते. क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि हमें उस बारे में पता ही नहीं है. अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको एक साल में 14% का रिटर्न भी देता है मार्केट के हिसाब से, which is doubled of that fixed deposit which we are doing in the bank. But due to unawareness, या मैं बात कहूँ sufficient knowledge नहीं है, हम उन चीजों के बारे में नहीं फोकस कर पाते. So इसीलिए ये आइडिया आया, क्योंकि जब हम बात करते थे तो हमें ये देखना पड़ता था कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सर्विसेज दे तो रहे हैं, पर सामने वाले को उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो हमें पहले वो बताना पड़ता था. तो हमने क्या किया, हमने प्रीवियस स्टार्टअप में से एक आइडिया फिगर आउट किया, एक प्रॉब्लम फिगर आउट किया. सबसे पहले तो प्रॉब्लम एरिया ये था कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे पास ये इश्यूज आ रहे थे कि पीपल आर नॉट अवेयर इनफ अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स एंड फाइनेंशियल नॉलेज. तो हमारे एग्जीक्यूटिव का बहुत सारा टाइम उसमें जाता था कि वो उनको पहले ट्रेन करें, और इसके बाद हम उनको सर्विसेज एंड वो सारी चीजें बता पाते थे. सो दिस वाज द प्रॉब्लम एरिया विच वी आइडेंटिफाइड from our previous startup. We thought of solving it by finding its root cause. तो root cause यही था कि नॉलेज की कमी थी. तो वहां से एक हमको आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना हम फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आज हम, क्योंकि हम ऑल इंडिया में डील करते हैं, हमारे क्लाइंट्स पैन इंडिया में है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा था जहां से हम देख पा रहे थे कि 72% इंडियंस, ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, 72% इंडियंस आर फाइनेंशियली इलिटरेट. तो ये बहुत बड़ा नंबर है. एंड जो 20-30 वाला क्लास है वो भी दे आर नॉट पुटिंग देयर प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम इनटू दैट. तो ये बहुत बड़ा नंबर था, एंड वी थॉट ऑफ सॉल्विंग इट. तो यहाँ से एक नया स्टार्टअप आइडिया है जिसे हम फिनोलिज बोलते हैं. फिनोलिज में एक ई लर्निंग स्टार्टअप है जो एक फोकस्ड है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग वेरियस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस. हम फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज को इजी और सिंप्लीफाइड करते हैं. मतलब जैसे दूर से, अभी जब आपको नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट, तो हम क्या करते हैं कि जब टीवी में जब भी वो बड़ी सी बिल्डिंग का ऐड आता है तो हम अपने चैनल चेंज कर देते हैं, या पेपर में ये BSE सेंसेक्स लिखा हुआ है तो हम वो पेज टर्न कर देते हैं. तो क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है. पर धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही हैं, एंड वी आर बाउंड टुवर्ड्स चेंजिंग इट एंड क्रिएटिंग and making things very easy and simplified so that everyone can get benefit of it. And also we are working, the complete team of Phenolish is working towards this mission of empowering 1 million Indians with financial education till 2025. And we are also planning to launch different courses so that it can benefit the entire country. So let's see. And then moving to the next slide, challenges we have discussed. मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, आपको कुछ बेसिक स्टार्टअप्स के भी एग्जांपल्स दिए. अब एक नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि चलो ये तो ठीक है, ये मार्केट में चल रहा है, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ से फ्यूचर कैसा दिखता है, क्या आगे क्या होने वाला है, मैं वो कैसे फोर्सी करूँ. हमने विजनरी अप्रोच की तो बात कर ली कि आपको विजनरी अप्रोच लेना है, आपको आपके पास विजन होना चाहिए टू बी एन एंटरप्रेन्योर, पर वो कैसे होगा, कैसे शुरू कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है, अगर आपको याद हो, इसको आप ध्यान से पढ़िए जो मोदी जी बोल रहे हैं.
आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, ये कुछ बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपकी आगे की दिशा, ये जो 4 स्लोगन से ये निर्धारित करते हैं। वोकल फॉर लोकल ये कहता है कि अपने आसपास देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ या एलॉन मस्क की तरह आप स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दो जो इंडियंस को या किसी भी एक बंदे को मून पे ले जाए, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने लोकल मार्केट को सपोर्ट करिए। अब इसमें आप बहुत सारी इनोवेशंस फिगर आउट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। मेक इन इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं या जिनकी फैमिली में है जो प्लान कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपने पढ़ा हो तो एमएसएमई में लोन्स, सरकार का एक हेडलाइन आई थी पेपर में, न्यूज़पेपर में, उन्होंने लिखा था कि आप सिर्फ लोन लीजिए, कर्जा हम चुकाएंगे। मतलब दे आर आपको बस वो सामने से बोल रहे हैं कि आप आइए, आप आगे बढ़ के लोन्स लीजिए। उन्होंने रेट्स भी, इंटरेस्ट रेट्स भी कम किए हुए हैं, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट वांट्स अस कि हम मेक इन इंडिया पे काम करें। मेक इन इंडिया स्लोगन बहुत पुराना है, वोकल एंड लोकल तो अभी का है, बट नाउ इंडिया एक्चुअली वांट्स कि हम इस पे काम करें। थर्ड इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये तभी हो पाएगा जब वोकल फॉर लोकल होगा, मेक इन इंडिया होगा, जब हम ना सिर्फ सोशल मीडिया पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हैं ना, कि हम चाइना लाइट नहीं खरीदेंगे। अभी व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, बाइकआउट कर दिया, आई ऑल्सो अग्री टू दैट कि हमें बाइकआउट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स, बट मैंने बाइकआउट कर दिया चाइनीज प्रोडक्ट, उसके बाद क्या हमारे पास वो सोल्यूशन है जो अभी हमें चाइनीज कंपनीज दे रही है? क्या हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत कम रेट में हम चाइना से लेके आते हैं? या फिर जो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना उसे मेड इन इंडिया पे कैसे रिप्लेस कर पाएंगे? क्या हमारे पास वो इनोवेशंस हैं? क्या हमारे पास वो प्रॉब्लम्स हैं? क्या हमारे पास वो सोल्यूशंस हैं जो कि हम एज कम्पेयर टू, अगर हमने चलो चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया, तो क्या हम इंडियन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सफिशिएंट जो कि उनकी पूर्ति कर देंगे? जब तक हमारे पास ये नहीं होगा तब तक हमारे जो स्लोगन है कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स, वो बेकार हैं। अदरवाइज वो सोशल मीडिया पे एक बस बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। या थोड़े बहुत करेंगे भी, 1-2% इंडियन, 5%, 10% लोग करेंगे भी, बट दैट विल नॉट मेक एनी ह्यूज डिफरेंस। आज आप बोलते हो कि ओप्पो वीवो का फोन मत यूज करो, डू यू हैव एनी इंडियन प्रोडक्ट, डू यू हैव एनी इंडियन मोबाइल? कि जो आज आप इंटेक्स का देखो या मैक्स के जो हमारे मोबाइल होते थे वो इंडियन कंपनीज थी, दे आर नोवेयर, आपको नहीं दिखेंगे कहीं, क्योंकि इंडियन कंपनीज को अब आगे आना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। हम आवाज तो उठा सकते हैं, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जब चीजें यहीं बनेगी, यहीं असेंबल होंगी इंडिया में, तब हम इन सारी चीजों को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। Fourth is digital India. Everything is going digital. Biggest example is the webinar or the workshop which we are conducting as of now. Digital India में बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत पहले से हैं। ये 2010 में स्टार्ट हो गया था, 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। When I was doing my MBA, तब एक पैराडाइम शिफ्ट आया था फ्लिपकार्ट में, Amazon में। Amazon is known to be the book sellers, वो पहले बुक सेल करते थे, एंड उसके बाद Amazon में आज आप सर्च करो आपको क्या नहीं मिलता है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट बहुत पहले ही हो चुका है। इट्स अभी इसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है। सो ये वो पॉइंट्स हैं कि आप इन चीजों को कैसे कर सकते हो, इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में कि कितने, कैसे आप चीजों को, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या इंडस्ट्री वाइज सेक्टर्स हैं हमारे पास जो अभी भी लेस एक्सप्लोर्ड है, लेस ट्रैवल्ड है, उनकी हम बात करते हैं। So options which can be explored more. First is organic farming. Everyone is inclined towards organic farming. हम देखते हैं कि celebrities जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, केमिकल लेस फूड। तो एक ये बहुत बहुत बढ़िया सेक्टर है। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। नाउ इट्स ऑन टू यू। अभी जो जनरेशन जी जिसकी बात हम करते हैं, जेन जी, it's on to you, it's on the youth entrepreneur how you can explore this area of organic farming. इसमें एक मैंने हाइड्रोपोनिक्स अलग से मेंशन किया हुआ। हाइड्रोपोनिक्स जिसको नहीं पता हो उनके लिए मैं बता देती हूँ। इट्स अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर व्हिच इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। कंसीडर दिस पॉइंट अगेन, which is a method of growing plants without soil by using mineral nutrient solutions in a water solvent. ये आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। कम समय में कम जमीन, अगर आपके पास नहीं है फार्म, नहीं है लैंड, and still you want to do farming, then hydroponics is the best solution which we can
have, आप इसके बारे में पढ़िए और पता करिए अगर आप if you are planning anything towards organic farming or farming or in any such field, so this can be life changing in coming generation. थर्ड इज कॉन्टैक्टलेस फूड डिलीवरी सिस्टम. अभी जोमेटो फूड डिलीवरी सिस्टम तो है, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, कन्वेंशनल बिजनेसेस को ही आप अनकन्वेंशनल तरीके से कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो ये है. फूड डिलीवरी सिस्टम है इंडिया में अभी बहुत सारे, जो हमारे जोमेटो हैं या स्विगी हैं, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर क्लेमिंग कि हम कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करते हैं. पर आप इसमें कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे कुछ एक एप्लीकेशन बनाई जा सकती है या कुछ एक आइडियाज, कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे आप कॉन्टैक्टलेस फूड डिलीवरी सिस्टम को कर सकते हो. बिकॉज अभी सारी चीजें बदल चुकी हैं आफ्टर दिस सिनेरियो ऑफ कोविड-19, सो दिस कैन बी एन ऑप्शन. फोर्थ इज कॉन्टैक्टलेस और सैनिटाइज डाइनिंग एक्सपीरियंस एट रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट आपके अगर फ्रेंड्स होंगे या आपके खुद के रेस्टोरेंट्स होंगे या आप आसपास देख रहे होंगे, तो रेस्टोरेंट्स आर एट ह्यूज लॉस. अभी वहां पे जो बिजनेस मतलब 190% था, अभी वो 5% 4% आ गया है. लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं एंड बहुत सारे बिजनेसेस है वो शट डाउन हो गए. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो सकता है आपको शायद दोबारा नहीं मिले बिकॉज दे आर ऑलरेडी इनटू द लॉस. एंड हम एज अ पीपल विल नॉट बी प्रेफरिंग, क्योंकि हम सेफ्टी इशू एक आता है. तो आप कुछ तरीके ऐसे आप सोच सकते हो, आप आइडिया कुछ लेके आ सकते हो जिसमें आप कॉन्टैक्टलेस और सैनिटाइज डाइनिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो. बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे रोबोट्स शेयर कर रहे हैं. दिस कैन बी एन आइडिया. आप रोबोट्स इंस्टॉल करते हो, तो इसमें जापान में दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस डाइनिंग एक्सपीरियंस दैट वेयर रोबोट्स आर सर्विंग द डिशेस. आप इंडिया में, क्योंकि इंडियंस आर नोन टू बी जुगाड़ फ्रेंडली, तो हम बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं पर बहुत चीप टेक्नोलॉजी जुगाड़ से कुछ अगर चीज कर सकते हैं, अगर आप इसमें एक्सप्लोर करना चाहो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. इसमें फंडिंग के चांसेस भी बहुत सारे हैं. नेक्स्ट इज सेफ एंड सैनिटाइज्ड ट्रैवलिंग ऑप्शन. आपने देखा होगा हम अभी भी बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं और हम डर रहे हैं अभी भी ट्रेन्स में, प्लेन्स में ट्रैवल करने के लिए. तो ऐसे कुछ ऑप्शंस जहाँ पे आप सेफ एंड सैनिटाइज ट्रैवलिंग ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं. जैसे बारिश में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है बट एक आइडिया है कि बारिश में जाने के लिए एक छाता होता है और एक रेनकोट होता है जो हमें बारिश से बचाता है. सो ऐसा कुछ आइडिया, मतलब मैं पीपी किट पहन के जाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड, अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो या टूरिज्म से रिलेटेड हो, अगर आपकी चीज इंटरेस्ट करती है, सो दिस कैन बी योर वन फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन. देन नेक्स्ट इज डिजिटल स्पेस. डिजिटल इंडिया की हम बात कर चुके हैं, ये ऑलरेडी है इंडिया में. पर अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिनेरियो बदला है, जो स्कूल्स आप देखोगे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है. ये हमेशा बाहर होता था, इंडिया के बाहर जो क्लासेस लगती थी हम देखते थे. इंडिया में आने में वक्त था, पर ये कोरोना को हम थैंकफुल कह लें कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी. ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉल्यूशंस हैं एंड अभी एवरीवन इज अडेप्टिव. हमारे पेरेंट्स, या अगर मैं बात करूं मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे दादाजी हैं, ही वाज नॉट अटैच्ड टू द टेक्नोलॉजीज, बट ही इज नाउ अटेंडिंग जूम सेशंस. क्योंकि हम फैमिली में जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग होते थे, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट एवरीवन ऑन अ वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल, सो हम जूम सेशन करते हैं. सो आप सोचो कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ बाइंड कर रही है चीजों को. तो सेवेंथ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, कई लोगों के माइंड में आ भी गया होगा ये आइडिया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. डिजिटल जिम और वर्कआउट ऑप्शंस ऑनलाइन. जिम के लिए अभी भी एक ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी डिसीज के फैलने के. तो एक डिजिटल जिम, आप अगर आप जिम से रिलेटेड हो या अगर आप वर्कआउट सेशंस आप इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो दिस कैन बी एन ऑप्शन, ये आप एक्सप्लोर करें. 8th is building helpful applications keeping current and future scenarios in mind. Example, application which can alert you while breaking social standing or not wearing mask. ऐसी कोई application अगर आप बना सकते हैं जो कि फ्यूचर सिनेरियोस को माइंड में रखने के लिए, जैसे एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पढ़ा होगा, हमारे सबके मोबाइल्स में भी है. ऐसे ही आप कुछ एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हो जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपने ब्रेक किया या कुछ 1 मीटर का डिफरेंस रखने. तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे आपने मास्क नहीं पहना है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. नेक्स्ट इज मास्क एंड सैनिटाइजर बिजनेस कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर.
अब आपको लगेगा मैंने पहले तो ये बोला है कि मास्क का बिजनेस ऑलरेडी है, सैनिटाइजर का बिजनेस ऑलरेडी है, और अभी फिर से इसकी क्या जरूरत है, या ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। सो आई वांट टू टेल यू वन एग्जांपल। अभी की न्यूज़ है, जून की ही न्यूज़ है। आईआईटी मैड्रास, अगर आपने सुना होगा, दैट इज द नंबर 1 आईआईटी इंस्टीट्यूट। सो उनके स्टूडेंट्स टीम ने दे हैव बिल्ड टचलेस सैनिटाइजर मशीन ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे हम बसेस में ट्रैवल करते हैं और प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स में करते हैं, तो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स टचलेस सैनिटाइजर मशीन, जहाँ पे आपको छूना नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि अभी मार्केट में आ चुके हैं, पर इनको आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। मास्क के बारे में बात करें, कभी जैसे डॉक्टर्स वाले मास्क मिलते हैं, पर कुछ फैशन डिजाइनर्स ने उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है। दिस स्पेशली फॉर वीमेन, हम लोगों को बहुत मैचिंग का थोड़ा सा वो होता है, सो यू नो वी कैन वियर मैचिंग मास्क ओवर देयर। एंड मास्क से भी, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, आप भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आते होंगे तो आप देखते होंगे, एक मास्क है जहाँ पे वो that has been specially designed for the person who were specially abled, वो जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए था, बिकॉज वो लिप रीड करते हैं, अगर आपने सुना होगा। तो लिप रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मास्क पहनोगे तो वो नहीं होगा, तो यहाँ पे मास्क में उन्होंने क्या किया था कि ट्रांसपेरेंट मास्क बनाया था विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स, जहाँ पे सामने वाला आराम से लिप रीड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी इनोवेशंस अभी भी हैं जो आप इस उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं गया है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, ये कुछ जगह थी जहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड वन थिंग कि आप अपने आसपास देखो, लुक अराउंड एंड सी हाउ यू कैन सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स लाइंग इन योर नेबरहुड। कैन यू बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर योर किराना शॉप on which your society can order groceries and delivered at the doorstep without breaking social distancing and staying at home? क्या आप अपने दूध वाले भैया के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हो? क्या आप अपने किराना शॉप वाले भैया के लिए बना सकते हो? आप बोलोगे कि तो ऑलरेडी है, हम रिलायंस पे ऑर्डर करते हैं, वो हमारे डोर स्टेप पे आ जाता है। बट देन लेट मी रिमाइंड यू दैट वोकल फॉर लोकल वाला थिंग, हमें अपने आसपास के वेंडर्स को भी एम्पावर करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उस आपका स्टार्टअप आइडिया भी हो, आप उस स्लोगन को भी सपोर्ट करो, तो डिजिटली समथिंग, अभी सबको पता है कि एप्स क्या होती है, अभी आपको अलग से नहीं समझाना है। तो आपको बस एक चीज ऐसी कुछ डिजाइन करनी है कि किराना वाले शॉप वाले भैया को आप दे दो, यहाँ पे आप लोकल को सपोर्ट करो, सोसाइटी वालों का नंबर उसमें ऐड हो, एंड वहां से आप लोग, इससे सारी चीजें एम्पावर होंगी, सोशल डिस्टेंसेस भी ब्रेक नहीं होगी, हम घर पे रहेंगे, एंड यू नो दिस इज हाउ यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग। Second is, can you help your friend find food who is stuck in this city without his family when the restaurants are closed? एक एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो बहुत जगह, जैसे इंदौर इज नोन टू बी, बाहर से आते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड, यू नो, ही वाज स्टक ओवर देयर, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस भवर, वहाँ पे ही वाज स्टक इन हिज हॉस्टल एंड कुड नॉट गो होम। तो खाने का बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी क्लोज थे, बाकी टाइम तो हम बाहर जाके या ऑर्डर कर लेते हैं। तो क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो इसमें हेल्प करे? कि आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि जैसे जोमेटो स्विगी तो ऑलरेडी दे रहे हैं, पर इन्होंने अपनी डिलीवरी बंद कर दी है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देवास, सबने सुना है देवास जो जगह है, वहां पे एक मिठाई वाले शॉप, वो मतलब परिचित है मेरे, तो उनकी मिठाई की शॉप थी जो कि बंद हो गई थी, एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, 1 महीने 2 महीने वो भी परेशान थे। फिर मैंने उनको ये प्रॉब्लम शेयर की कि ये मिठाई का है, ऐसे बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने एक मुझे आइडिया दिया, बातों बातों में उन्होंने कहा कि चलो रेस्टोरेंट्स तो हम डिलीवरी करते थे, पर क्या हम घर से ही डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, एंड देयर दिस आइडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। उन्होंने घर से फूड डिलीवरी स्टार्ट की। उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स थे या आसपास वाले थे या जो उनके कस्टमर्स थे रेगुलर, उनको व्हाट्सएप पे ऐड किया, और उन्होंने मतलब मेंशन किया कि हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, घर में चीजें बनाई, एंड उन्होंने डिलीवर की। धीरे धीरे उनका जो सब, क्योंकि सबको पता था इनका मिठाई का बिजनेस है, तो धीरे धीरे बर्थडे पार्टीज या जो भी ओकेशंस थे, तो वहां से भी उनके स्वीट्स का ऑर्डर आने लगे, एंड अभी ही इज डिलीवरिंग फ्रॉम हिज होम। So why cannot be done, you know, by using an application? तो ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो कि मैंने अभी फिगर आउट किए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि आप कुछ इनोवेटर बनो, या आप कुछ लेस ट्रैवल रोड्स में कुछ करना चाहते हो, या वो एक हम सबके मन में होता है ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, so this is the right time, क्योंकि crisis brings you so many opportunities. So think about it, and you know you will be finding enormous options to figure out. Last but not the least, what is that one thing you need to begin? No, it's not the capital. No, it's not no the support. No, it's nothing. It's only the entrepreneurial mindset. A mindset is the way of thinking that enables you to overcome challenges and accept responsibility for your outcomes.
आपके पास जब तक वो माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप वो चीजें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो. So learn from the mistakes, take continuous actions on your ideas, and think like an entrepreneur. So this is here. I will be summing up my session. So thank you so much, all of you. And you can share your feedback about this session and tag me in your post. I would love to read them. And I'm available on LinkedIn and Instagram. So you can find my handle by Tanvi Khandpal. Or for any query related to Phenology, you can directly reach us on our mail ID. This WhatsApp number is our business account. So you can mail your query regarding Phenology over here. And all the best, those who are aspiring entrepreneurs, those who are entrepreneurs. And once again, जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं वही बोलना चाह रही हूँ, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए कि हम एनकरेज करें एंटरप्रेन्योरशिप अपने घर में. और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं, जो चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बनना, क्यों हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम रिस्क में हैं. आपको उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस लायक हो कि आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो और आप में वो पोटेंशियल है, और तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे. सो जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जरूर बढ़ेंगे. और जो मोदी जी का सपना है, हम सबका सपना है, वो जल्दी पूरा होगा. Thank you so much once again for this patience, for listening me. Thank you so much, CDGI team, once again. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful session. So we are having some questions in the chat box. I have received some question, and participant, if you have any question from your end, you can just post the question, and or if you want to ask directly, then you can just raise your hand, so we will unmute you. So one question I received from Akshay Garg is it important to have some good financial condition before starting any business? May I know the name of this person? Akshay Garg. Akshay Garg. Akshay, let me tell you, yes, it is important. But let me ask you one question. आपके पास मोबाइल है? If we can unmute him. Yeah, sure. Akshay, you can now you can ask your question. Yeah, ma'am. I have a mobile. Yes, अक्षय, आपके पास मोबाइल है. आप जैसे आपने कहा कि मुझे क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. अगर हमारे पास मोबाइल है ना, तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है. ठीक है, आपके पास अमेज़न है, आपके पास बिजनेस आइडिया कोई आया है, और अगर आप चाहते हो कि स्टार्ट करना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें एक मतलब दूर कहीं पे यूट्यूब से स्टार्ट होती है. अगर आप चाहते हो कि कोई एक बिजनेस आइडिया आपको स्टार्ट करना है, अगर कोई बिजनेस है, तो आप या लिस्ट कर सकते हो अपना बिजनेस ऑनलाइन, या फिर आप अभी स्टार्ट कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वीडियो बनाना है अपना, जहाँ पे आप बात करते हो चीजों के बारे में. अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में करते हो, तो आपको वहां पे चीजें बतानी है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिगिन. फिर क्या होता है, कैपिटल के लिए तो हमारे पास फंडिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, पर पहले आपको ये देखना है कि क्या आपका आइडिया उतना इम्पोर्टेंट है, उतना फीजिबल है कि आप उसे आगे तक लेके जाओ. क्या आप 1 साल बाद या 5 साल बाद भी उस आइडिया के साथ रहोगे उतने ही इंटरेस्ट से जितने इंटरेस्ट से आपने शुरू किया है. थर्ड, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन सा नया एस्पेक्ट दे रहा है चीजों को देखने के लिए. अगर आप में तीनों चीजें हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कैपिटल. इनिशियली सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, या मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. कोई भी बिजनेस, अगर आप अभी स्टूडेंट हो या इनिशियल लेवल पे हो, तो मैं आपको कहूंगी कि आप डिजिटल कोई भी काम स्टार्ट करो, जहाँ पे कम कैपिटल में, जहाँ पे आप अवेयरनेस करके आप छोटा सा कंपनी पेज बना सकते हो. आप वहाँ पे अपने आइडिया शेयर करो, और वहां से आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. तो कैपिटल का इतना प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. आगे बहुत सारी चीजें हैं, आप बस स्टार्ट करो, आपके स्टार्ट करने की देर है. सो दैट एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट. Okay, ma'am. Thanks a lot. So we have next question from Vikram Kumar Gore. So Vikram, you can unmute yourself and ask your question. Vikram Kumar Gore. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. मैम, मेरा एक आइडिया था स्मार्ट शेयर बनाने का. जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो हर कोई ये चाहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे. तो ये जो स्मार्ट व्हील चेयर है, वो हम उसको एलेक्सा और एंड्रॉइड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. वो उसी ऐप से मॉनिटर हो जाएगी, और इसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी म्यूजिक है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये सब भी चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं. तो मुझे मैम
मैं ये आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ अभी। मैंने कल भी ये आइडिया दिया था, तो मेरा ये सेलेक्ट नहीं हुआ आइडिया। तो मैम मैं इसको गाइडेंस के लिए और किससे कनेक्ट करूँ और कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? देखो, आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आप अच्छी बात है कि आपने इसे बहुत टेस्ट किया हुआ है और आपने बहुत सारी चीजें जो बताई और उससे मैम बहुत जो इसमें व्हील है वो लेफ्ट राइट कहीं भी मूव आराम से करा जा सकता है, और इसको कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है कि, और वायरलेस रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। और सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं। इट्स वंडरफुल। नो, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम घर पे बैठ के इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एंड सबसे अच्छी बात है आपने इसे एग्जीक्यूट किया। क्यूरियोसिटी, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं ना तो बहुत क्यूरियस होते हैं, तो अभी आपने इसे एग्जीक्यूट किया है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। सेकंड स्टेप अब आपके लिए कि आप बोल रहे हो सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग मैम फॉर। इसका हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखा सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। मैं इंदौर के ही कॉलेज में हूँ, मैं आपको एक तो मैं आपको सजेशन, दिखा सकता हूँ जैसे ये खत्म होगा तो। श्योर, वंडरफुल। मैं आपको एक सजेशन और दूंगी। जैसे आपका ये आइडिया है तो आप इसको ना, आप इसे मार्केट करना स्टार्ट करो। जैसे सोशल मीडिया में ना बहुत पावर होती है। आप देखते हो कि कोई भी एक नई चीज आती है और वो आज मतलब इसे 24 आवर्स भी नहीं लगते हैं वायरल होने में। तो अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो एक कुछ आप अगर इसको ऑर्गेनिकली वायरल करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। वायरल करने से होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है कि आपने जो वायरल किया उसमें जो ऑडियंस हो वहां से कुछ आपको अप्रोच मिल जाए, कोई आपको अप्रोच करे उस चीज को एग्जीक्यूट करने का। दूसरी चीज ये भी रहती है कि अगर आप किसी आइडिया या आपका जो आइडिया है उसे कुछ पेड ऑर्गेनिक कैंपेन्स के अलावा पेड कैंपेन्स रहते हैं, उसके थ्रू आप कोशिश करो। ऑल्सो मैं एक और चीज आपको देना चाहूंगी कि उसमें आप टैग करो बिजनेसमैन को। जैसे जो भी इंडस्ट्री का आइडिया आपको बिलोंग करता है ना, आप लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल है, आप लिंक्डइन चलाते हो? इन पे है मेरी प्रोफाइल। लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल है, वंडरफुल। तो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, जितने भी बिजनेसमैन है, क्योंकि लिंक्डइन पे जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, आप देखोगे तो हो सकता है कंपनीज के यस पेज मैम। आपको देखो और आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिले। और जब आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, वायरल होगा कंपनीज में, वो जो व्यूज आएंगे तो उसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपके प्रोडक्ट नोटिस होने के। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड अगर ये फिर भी सिलेक्ट नहीं होता है ना, तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगी कि कीप ऑन इनोवेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को आप छोड़ो मत। अभी है आप ना अपने लोकल लेवल पे जाके उस चीज को मार्केट करो। जैसे आप जा सकते हो आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो बहुत सारे स्पेशली एबल्ड स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहां पे जाके आप अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो एंड देन दे कैन गिव यू एन ऑप्शन। तो हो सकता है आपको अगर कोई मैम सजेशन नहीं और जैसे कि जो सीट फंड है बेस, जो सीट फंड और बेस रहता है, मतलब अभी तो हम अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी हमको थोड़ा सपोर्ट अगर मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए देखिए बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं आजकल, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बहुत सारे हैं उसमें। या फिर आप देखते हो कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर देखा है जिससे आप उसे आप अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हो, उनके सेशन आप लोग कंडक्ट करवा सकते हो। जैसे वर्कशॉप में नो दे हैव प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे कोई सेशन आपके कॉलेज के थ्रू आप कंडक्ट करवा सकते हो उनको अप्रोच करके, एंड देन यू कैन गेट एन आइडिया। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Another question we have is what was your tough time in your business and how do you have come out from that particular situation? टफ टाइम मैं ये बोलूंगी कि एक नहीं बहुत सारे थे। मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ। जब समय समय जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था अर्लियर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2 लोगों से स्टार्ट किया था कंपनी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी स्केल्ड इट अप टू 200 पीपल एंड हमने भी जो बहुत सारी चीजें, एक ऐसा टाइम आया था जब मेरे पास, हमने सैलरीज जो थी मैंने मेरे सेविंग्स अकाउंट से दी थी। जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना उन्होंने कि फंड नहीं रहते हैं, तो मेरे पास भी फंड नहीं था क्योंकि मैंने मेरे पापा से परमिशन ली थी एंड फैमिली का सपोर्ट था, तो मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था वो। तो सेविंग्स अकाउंट से हमने सैलरीज दी थी लोगों की। फिर स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो कंपनी ने इतना अच्छा नहीं किया 1 साल के अंदर, तो मैंने मेरे पेरेंट्स से ये बोला कि आप एक काम करो, मेरी शादी के लिए जो आपने एफडी रखी है ना वो तुड़वा के वो पैसे मुझे दे दो। So that was the time, and then again my parents supported into that.
फिर एक डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया, हमारे पास 100 लोगों की टीम थी, अच्छा चल रहा था, वी वर जनरेटिंग रेवेन्यू इन लाइक मोर देन 30+ lakhs in a month and we are doing good, completely good. फिर डीमोनेटाइजेशन हैपेंड एंड उसके बाद बिजनेस बहुत डाउन चला गया, हमारी टीम इट रिड्यूस टू अप टू 10 people, हमें बहुत ज्यादा बिजनेस लॉस हुआ और तब ऐसा भी एक टाइम था जब हमें ऐसा लगा कि हमको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। पर देन मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके साथ, आपकी टीम के साथ, मेरे पास आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच को फाउंडर्स एंड अ टीम ऑफ सच ग्रेट पीपल कि उन्होंने मतलब सपोर्ट किया एंड तभी हमने नहीं वो चीज की और फिर हमने उसको स्केल किया आगे। हमने ऐसे काम शुरू किया कि हमको स्टार्टिंग से ही करना है, सारी चीजें फिर से शुरू की, हमने हार नहीं मानी, अच्छी बात थी और उसका हमको फायदा भी मिला। हमने बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेशंस के लिए दिए थे, बहुत सारे रिजेक्ट होते थे, नहीं होते थे सिलेक्ट, फिर फाइनली हमने उन सारी चीजों पे काम किया और माय प्रीवियस स्टार्टअप हैज बीन अवॉर्डेड बाय इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया बाय इंडिया लीडरशिप अवार्ड इन 2018। तो ये ऐसे कुछ मतलब मेजर वो थे, बाकी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन और समथिंग। So one last question, यस that is from Sapan Rajput. What is the first thing we have to do? How do we make other believe in our product? how do we make other to believe in our product? Yeah. Can you please repeat the question for me, please? How do we make others believe in our product? Okay, first of all you have to believe in your product first, that is the most important thing. पहले आप देखोगे, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि छोटी सी चीज को मैं ले लूं कि अमिताभ बच्चन से लेके आज बॉलीवुड में बात करते हैं, आयुष्मान खुराना का लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि या हम नसीर इनका I'm not getting his name, what's his name, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर हम बात करें, so nobody trusted him. उन्होंने कैसे इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, बिकॉज इंडस्ट्री में कैसा था कि आप गुड लुकिंग हो, आपका हीरो बनने के लिए आते हैं ना सब मुंबई में, पर उनको बिलीव था, उनको अपनी एक्टिंग पे बिलीव था, उनको अपने सपनों पे बिलीव था। अमिताभ बच्चन को ये बोल दिया गया था कि आपकी आवाज, वो रेडियो के इंटरव्यू के लिए आए थे, आपने सबने स्टोरी सुनी होगी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग, पर उनको बिलीव था कि हाँ खुद में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खुद को अपने प्रोडक्ट में बिलीव होना चाहिए और क्या वो बिलीव जस्टिफाइड है या नहीं। ओवर बिलीव इज लाइक हार्मफुल। अगर आपको ये भी जरूरी है कि आप उन क्रिटिसिज्म पे ध्यान दें, अगर आपने किसी के सामने वो प्रोडक्ट शोकेस किया है और अगर आपको उसका फीडबैक मिला है तो आप उस फीडबैक पे सोचें। हो सकता है कि फीडबैक जरूरी हो या फीडबैक आपके प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए हो, हमेशा जरूरी नहीं रहता कि हमारा बिलीफ हमारे साथ काम करता है। तो आपके जो आसपास वाले जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे पूछो कि जो क्रिटिसिज्म या जो फीडबैक आपको मिला है, क्या वो प्रोडक्ट मतलब वाकई में वैसा है या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो वहां से जो फीडबैक मिले उस पर आप काम करके, और अगर वाकई में अच्छा है, सब कुछ सही है, तो आप फिर मतलब आपको थोड़ी देर से वो एक्सेप्टेंस मिलेगा, पर वो आपको मिल जाएगा। So thank you very much. I think all the questions were answered perfectly by ma'am. So thank you for the wonderful session. On behalf of CDGI, I thank you once again for giving us time from your busy schedule, and I thanks to management of CDGI, our respected group director sir, Dean sir, and thanks to our honorable Vice Chancellor sir and Chobe sir for giving us opportunity to conduct this 2 days workshop on entrepreneurship road to Atmanirbhar. So thanks to all the participants for their active listening also, and 2 to 3 small information for participants. One thing is that I will be sending registration data on WhatsApp group, so just check your details, and if there is any issue in your detail, so just drop me a mail. Request please do not send message on WhatsApp, just drop a mail. I will update the details and send the same sheet to you again by second session or after the second session of today. And request all the participants to join with your complete name, because we are not able to identify you otherwise, and your attendance will not be marked. So request that from second session, please join with your complete information and check your detail from the sheet which I will be sharing on the WhatsApp group. So thank you once again, Tanvi ma'am, for accepting our invitation and joining the session. Thank you so much for inviting, and thank you everyone who joined.
I'm looking forward for more wonderful sessions ahead. Thank you, Team CDGI. You guys are doing great job, and this is the best utilization which we can make of our times. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. So participants, we will reconnect again at 4 p.m. in the next session of today's workshop, and I will be sharing the detail on the WhatsApp group. So I will be ending the meeting now.